हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? डूइंग स्टडी एट होम? कीप इट अप। जो पीडीएफ फाइल्स मैंने आपको भेजे हैं वही आपको फॉलो करने हैं इन सब टॉपिक्स के लिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, देखते हैं कि हमने कल क्या देखा था। इन शॉर्ट, द लास्ट टॉपिक वी हैव टेकन यस्टरडे, इट इज नथिंग बट अ प्रोसेस। सो कैन यू टेल मी क्या होता है प्रोसेस? Yes, it is a path or the operation by which system changes from one state into another state. It is a path or the operation by which system changes from one state into another state. Process के 7 टाइप्स हमने कल देखे थे। The first one is a isothermal process. The process in which temperature of the system remains constant throughout the process. It is known as a isothermal process. For example, boiling point of pure liquid. Yesterday also I told you, if the liquid is pure, its boiling point is fixed at a given pressure. For example, पानी का boiling point कितना है? Yes, 100 डिग्री सेल्सियस at 1 atmospheric pressure. तो ये है इसका एग्जांपल। आइसोबैरिक प्रोसेस, सेकेंड हमारा प्रोसेस। तो इन केस ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच देयर इज नो चेंज इन द प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज नोन एज आइसोबैरिक प्रोसेस। जितनी भी हम लोग रिएक्शंस करते हैं लैब में, all that reactions we do at a constant atmospheric pressure. So it's an example of isobaric process. And the next one is isochoric process. Yes, the process in which volume of the system does not change or it will remain constant throughout the process is known as isochoric process. Yes, I told you example also. If the gas is allowed to expand in a closed vessel, then the volume of the system will remain constant. ये है इसका एग्जाम्पल। बाद में हमने देखा था adiabatic process. The process in which there is no heat exchange between the system and the surrounding is known as adiabatic process. इसका जो एग्जाम्पल है, ये मैंने आपको कल बोला था, hot liquid kept in a thermos flask. If a hot liquid is kept in thermos flask, no heat will enter the system or leave the system. Means there is no exchange of heat between the system and the surrounding. So it is an example of the adiabatic process. Means thermos flask में अगर हमने कोई लिक्विड लिया, this will be the example of a adiabatic process. For adiabatic process, the symbol is Q is equal to 0. I told you. जितने भी सिम्बॉल्स मैंने आपको दिए थे कल, वो आपको ध्यान में रखने हैं, सभी सिम्बॉल्स, because for the numericals we need all that symbols. कल हमने देखा था पाथा प्रोसेस, जो था साइक्लिक प्रोसेस, the process in which system undergoes many changes but returns to its initial state. It is known as the cyclic process. Cyclic process के लिए the value of delta H is equal to 0. No heat change, I mean the enthalpy change will be equal to 0. And delta U also is equal to 0 for the cyclic process. There is no change in the internal energy. Remember, the symbol for it is U. U is capital U. We have to use for internal energy. बाद में हमने देखा था what is meant by reversible process. Yes, the process in which driving force is only, yes, the word infinitesimally
greater than the opposing force and its direction can be reversed at any state is known as a reversible process. देखिए एक बार फिर से समझो, यहां पे स्टेट ए है सिस्टम का और ये है स्टेट बी। तो स्टेट ए को स्टेट बी की तरफ जो फोर्स लेके जाएगा इट इज नोन एज ड्राइविंग फोर्स। एट द सेम टाइम स्टेट ए को स्टेट बी की तरफ ले जाने से जो फोर्स अपोज करेगा इसे हम कहेंगे इसे हम कहेंगे ऑपोजिंग फोर्स। ऑपोजिंग फोर्स। So, the process in which driving force is only infinitesimally greater than the opposing force and its direction can be reversed at any state is known as reversible process. The process in which driving force is only infinitesimally greater than the opposing force and its direction can be reversed at any stage is known as reversible process. इसके बाद में इसके जो है फीचर्स ये भी मैंने आपको बताए थे। एक बार चाहिए तो वो जो लेक्चर है थर्ड लेक्चर आपको देखना है। इसके आगे जो एयर रिवर्सिबल प्रोसेस, ये भी कल हमारा हो गया था, आई मीन इन द प्रीवियस लेक्चर। द प्रोसेस इन विच ड्राइविंग फोर्स इज सिग्निफिकेंटली लार्ज देन द अपोजिंग फोर्स इज नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। भी प्रोसेस है नेचुरल प्रोसेस, वो सब उसके एग्जांपल्स है, that are also known as a spontaneous process. So it is known as a irreversible process. तो यहां तक हमने कल देखा था। अभी आज का हमारा टॉपिक जो है, हम अभी यहां से आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव टू नो the nature of heat and work. Yes, the nature of heat and work. देखिए heat and work, इनके लिए डेफिनेशन क्या होगा? Definition for heat. It is the quantity of energy which can be exchanged between system and surrounding on account of temperature difference. Yes, it is the quantity of energy which can be exchanged between system and surrounding on account of temperature difference. मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा है सिस्टम का और सराउंडिंग का कम है तो हीट विल फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। रिमेंबर, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर
to the lower temperature. Heat always flows from, yes, higher temperature to the lower temperature. So हीट के लिए हम लोग जो सिंबल यूज करेंगे, अभी जो नया टेक्स्ट बुक है आपका, इसके हिसाब से इसका सिंबल होता है कैपिटल क्यू. ओके, बट इन द ओल्ड टेक्स्ट बुक ऑल्सो इट इज गिवन एज स्मॉल क्यू. सो बोथ आर द सिंबल्स फॉर द हीट दैट वी कैन यूज. यस, रिमेंबर, हीट इज एन एग्जांपल ऑफ extensive property. Yes, the properties of the system whose values depends on the amount of matter present in the system are known as extensive property. Heat is also an example of, yes, extensive property. As well as it is an example of path function. यस, क्योंकि इसका वैल्यू डिपेंड करता है पाथ पे. स्टेट फंक्शन क्या है ये मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में. इन केस ऑफ अ पाथ फंक्शन, एक्चुअली द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम हुज वैल्यूज डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड इज नोन एज अ पाथ फंक्शन. सो हीट इज एन एग्जांपल ऑफ अ पाथ फंक्शन. Okay, so this is all about the heat. Now, इसके आगे हमें देखना है what is the definition of work. क्या होता है वर्क? Yes, work is the one of the means. It is one of the means by which system exchanges energy with surrounding. It is one of the means by which system exchanges energy with the surrounding. That is called as a work. अगर हम बात करें वर्क की, जो वर्क होता है मैकेनिक्स में, इसके लिए जो फॉर्मूला है, वर्क इज इक्वल टू, यस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. लेकिन इन केस ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो वर्क रहेगा ये रहेगा प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क. इन केस ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वर्क डन यू हैव टू टेक एज अ प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क. कैसे? देखिए, आपको पता है जो फॉर्मूला है प्रेशर का, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया. तो इस हिसाब से जो प्रेशर का फॉर्मूला है, प्रेशर इज इक्वल फोर्स पर यूनिट एरिया. अगर हम देखें तो यहां पे जो एरिया है इट इज इक्वल टू डिस्टेंस स्क्वायर, वॉल्यूम इज इक्वल टू डिस्टेंस क्यूब. ये है प्रेशर के लिए. प्रेशर के लिए हमने सिंबल यूज किया है P. तो अगर हमने यहां पे वैल्यू पुट किए, प्रेशर का वैल्यू क्या है? यस, फोर्स अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर. और यहां पे क्या है वॉल्यूम के लिए? डिस्टेंस क्यूब. सो डिस्टेंस स्क्वायर, इसमें से ये दो चले जाएंगे, डी, जो नीचे बचेगा इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. सो W इज इक्वल टू PV. PV मीन्स प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क.
इट इज इक्वल टू एफ इंटू डी। इसलिए हम इसे कहेंगे प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। मैंने कहा था आपसे एंथैल्पी का जो डेफिनेशन किया है हमें, एंथैल्पी एच, इसके लिए हम लोग लिखते हैं U प्लस पीवी। तो देखिए यहां पे ये जो टर्म है एंथैल्पी का, एंथैल्पी मींस टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, मींस इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड pressure volume type of energy, means pressure volume type of work, that's nothing but enthalpy। तो ये है work done। You know that the units of work and heat they are almost similar, yes। ये जो बोर्ड पे लिखा है आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। लिख लिया आप लोगों ने? गुड। अभी इसके आगे जाके हम देख लेते हैं नेचर ऑफ वर्क एंड हीट। देखिए इसके लिए हम देखते हैं दो केसेस, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क कैसे होता है। फॉर दैट जस्ट टेक वन एग्जांपल। फर्स्ट वन, द रिएक्शन ऑफ decomposition of H2O2, hydrogen peroxide. You know that H2O2, it's a hydrogen peroxide. It will get decomposed into H2O liquid, yes, plus O2 gaseous. रिएक्शन को करते हैं बैलेंस। यहां पे 2 आएगा टू बैलेंस द ऑक्सीजन, वी हैव टू राइट हियर आल्सो 2। नाउ दिस इज द रिएक्शन। इमेजिन कीजिए कि यहां पे एक फ्लास्क रखा हुआ है, इस ग्लास में अगर हमने H2O2 लिया तो H2O2 जो है, नाउ यू कैन सी, ये है इसका इनिशियल वॉल्यूम। H2O2 जो है इसका जब भी होगा डिकम्पोजिशन, तो डिकम्पोजिशन होने के बाद देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस आल्सो। तो ऑक्सीजन गैस जैसे फॉर्म हो जाएगा, ये जो होता है पिस्टन, याद रखिएगा ये जो होता है पिस्टन, इट्स अ वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस। yesterday also I told you about this कि ये जो होता है पिस्टन, it can move in upward direction as well as in the downward direction। अगर H2O2 का होता है डिकम्पोजिशन, तो यहां पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगा, और ऑक्सीजन गैस जैसे प्रोड्यूस होगा तो गैस विल एक्सपांड, मींस गैस विल एक्सर्ट सम प्रेशर ऑन दिस पिस्टन। तो ये जो रहेगा पिस्टन, इसके ऊपर कुछ वेट्स अगर हम रखते हैं, यस, समझो हमें यहां पे ऊपर रखे कुछ वेट्स, यहां पे है समझो ये मास,
तो जैसे ही एक्सपांशन होगा इस गैस का, तो पिस्टन इट विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। देखिए यहां तक था इनिशियली, बाद में जाके ये पिस्टन मूव हुआ। ये देखिए, दिस इज द ओरिजिनल वॉल्यूम एंड नाउ दिस इज द वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम इतना है, ये वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से है, जो यहां पे गैसियस फॉर्म में है। नाउ यू कैन सी, ये जो मास यहां पे रखा था हमने, यहां पे जो मास रखा था, दिस मास इट विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो इस तरीके से यहां पे एक्सपांशन हो रहा है, एक्सपांशन हुआ है यहां पे। तो जैसे ही ये एक्सपांशन हुआ, मींस सिस्टम हैज परफॉर्म द वर्क ऑन द सराउंडिंग इन दिस केस। सो आई विल राइट हियर, ड्यूरिंग द एक्सपांशन of gas, system will perform the work yes, during the expansion of the gas, system will perform the work on the surrounding. This is the case of expansion. लेकिन यह एक्सपांशन होते वक्त सिस्टम को अपना जो एनर्जी होता है को खर्च करना पड़ता है। इसीलिए हम यहां पे जो वैल्यू लेंगे W का, वर्क डन का, वो आएगा नेगेटिव। सो द वैल्यू ऑफ वर्क डन हियर नेगेटिव। नाउ रिमेंबर, नेगेटिव साइन यहां पे हम लोग जो दे रहे हैं, इट इज जस्ट मियरली फॉर द पर्पस ऑफ साइन कन्वेंशन। ये साइन कन्वेंशन के हिसाब से होता है। रिमेंबर, जब भी गैस का एक्सपांशन होगा तो सिस्टम का अपना एनर्जी खर्च हो रहा है। पहले लेक्चर में आपको बोला था मैंने कि वी हैव टू थिंक फॉर द सिस्टम एज पर्सपेक्टिव। तो उस हिसाब से सिस्टम का अपना एनर्जी खर्च हो रहा है, क्योंकि गैस को, मतलब गैस जैसे एक्सपांड होगा तो सिस्टम को वर्क करना पड़ेगा, और वो जो है वर्क डन जो होता है सिस्टम की अपनी जो एनर्जी होती है उसी से होता है। इसीलिए यहां पे वर्क डन का वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेंगे। ओके, सो ये है अपना पहला एग्जांपल। दूसरा और हम एग्जांपल देखते हैं। The reaction between ammonia gas and HCl gas. Yes, if you see properly, ammonia and HCl gas, they will react together, and then there is a formation of NH4Cl, ammonium fluoride, which is in a solid state. So the reaction between ammonia gas and HCl gas
Now, in this reaction, we carry in a container. Again, here is the container. इसके अंदर हमने अमोनिया गैस और HCl गैस को लिया. Ammonia gas will react with HCl gas, and then there is a formation of ammonium chloride. Now look here, during this reaction both of these gases अगर अमोनिया गैस और HCl गैस का रिएक्शन होगा तो उन दोनों के रिएक्शन से फॉर्म हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड. ऐसे में दोनों के दोनों गैस यहां पे यूजअप होंगे. इसीलिए यहां पे जो मास हमने लिया है इसका वापस होगा डिस्प्लेसमेंट. लेकिन इस वक्त यहां पे ये जो है इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम कम आ रहा है. देखिए पहले यहां था उसका लेवल, अब यहां से नीचे आ रहे हैं. नाउ यू कैन सी हियर इन दिस केस ये जो है सराउंडिंग में सिस्टम के ऊपर, सिस्टम कौन सा है यहां, सराउंडिंग ने सिस्टम के ऊपर यहां पे वर्क परफॉर्म किया है. ऐसे में हम वर्क डन का जो वैल्यू है, वर्क डन इट इज इक्वल टू पॉजिटिव एज पर द साइन कन्वेंशन. सो रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो, ड्यूरिंग द compression of a gas, सिस्टम के ऊपर वर्क परफॉर्म होगा बाय द सराउंडिंग. सो आई विल राइट द स्टेटमेंट एज ड्यूरिंग द एक्सपांशन, ड्यूरिंग द compression of gas, surrounding will perform the work on the system. So आया समझ में? देखिए ये था V1 इनिशियल वॉल्यूम और ये है V2, ये है फाइनल वॉल्यूम. और यहां पे वॉल्यूम कम हो रहा है, यहां पे नीचे आया, सराउंडिंग ने सिस्टम के ऊपर वर्क परफॉर्म किया है. सो इन दिस वे वी कैन से दैट हाउ द प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क, दिस इज कॉल्ड एज अ प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क, आइदर एक्सपांशन और आइदर कॉम्प्रेशन. This is also called as the mechanical work. So ये डायग्राम भी आप प्रॉपरली निकाल लीजिए और ये जो लिखा है मैंने बोर्ड पे इसको भी आपके नोटबुक में प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए. ये हमारे लिए नोट्स है. लिख लिया पूरा? ठीक है. अभी 3 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, मतलब आता है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन
for the work done. Expression for work done against external pressure. आपको लिखाना पड़ेगा पहले। इमेजिन कीजिए इसमें एक गैस भरा हुआ है, इसका इनिशियल वॉल्यूम है V1 एंड यहां पे ये है V2 एज अ फाइनल वॉल्यूम. Let the gas is having pressure P and let A be the surface area, or you can say, sorry, it's the area of cross section of the cylinder. इस पिस्टन के ऊपर Px, it's the external pressure, that is pressure given by the surrounding on the system. Now यहां पे हमें गैस फिल किया है, तो ये सब चीजें आपको वहां पे नोट डाउन करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी. So consider the certain amount of gas enclosed in a cylinder fitted with weightless frictionless movable and rigid piston. Let A be the area of cross section of cylinder and P be the pressure of gas having initial volume V1. Let P external be the pressure exerted by the surrounding on the system. ये जो हमें लिखा है यहां पे, जो दिया है डायग्राम में, वही हमने यहां पे लिखा है. अभी
ये जो है पिस्टन पहले यहां था, इसका एक्सपांशन होने के बाद पिस्टन अभी यहां पे गया है. सो वी आर राइट हियर, दिस इज नथिंग बट यस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन. वर्क डन कैन बी गिवन बाय, आपको बताया है फॉर्मूला है वर्क डन का. वर्क डन इज इक्वल टू यस ऑपोजिट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. इसे हम चाहिए तो डी, ए बी सिंबल इधर दे सकते हैं, स्मॉल डी. नाउ हियर work done is equal to opposing force into displacement. So I will write here minus F into D. मैंने यहां पे माइनस साइन दिया है. आई होप यू अंडरस्टैंड. देखिए, ड्यूरिंग द एक्सपांशन ऑफ द गैस, अभी देखा हमने थोड़ी देर पहले, जब भी एक्सपांशन होगा गैस का तो सिस्टम को अपना एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, और ऐसे में वर्क डन का वैल्यू हमेशा निगेटिव लेंगे. तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट सिस्टम्स internal energy decreases during the expansion. So work done is equal to opposing force into displacement. Now you know that ये है वर्क डन के लिए मैं सिंबल देता हूं डी डब्ल्यू. इसे मैं कहूंगा इक्वेशन नंबर 1. वी नो PEX इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. सो देयरफॉर F के लिए मैं यहां पे लिखूंगा PEX इंटू A एंड पुटिंग दिस वैल्यू हियर इन इक्वेशन 1. देखो यहां पे जो PEX लिखा है मैंने, इट्स एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. दैट्स व्हाई फोर्स इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू एरिया फ्रॉम इक्वेशन 1. क्या आएगा? W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू A इंटू D. देखिए प्रॉपर्ली आगे जो दिया है यहां पे, इट्स अबाउट टॉप एक्सटर्नल प्रेशर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट. लेकिन अगर आप देखोगे गौर से तो यहां पे जो एरिया दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यह है इतना एरिया पूरा, और यहां पे ये है चेंज इन द वॉल्यूम. आई एम सॉरी, ये जो है P external is the pressure acting on this, and if you see this area, the change, you know that displacement area, this area करते, I'm sorry. तो ये जो एरिया दिया है यहां पे इतना पूरा सा, ये वही एरिया है, this is the same area, you know, A into D is nothing but the change in the volume, and therefore W is equal to, यहां पे क्या आएगा फिर, माइनस P एक्सटर्नल इंटू S डेल्टा V. देखिए A इंटू D, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू S डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज
in volume, and that's why A into D is equal to delta V. So W is equal to minus P external into delta V. This is the required expression. This will be asked for 3 marks. 3 मार्क्स के लिए आपको इसमें इतना सब कुछ लिखने का है. इसे भी आप पूरा ऐसे नोट डाउन कर लीजिए आपके नोटबुक में. देखिए हमारे लिए यही नोट्स है. नोट डाउन दिस वन. लिखिए आप. गुड. अभी देखिए ये जो फॉर्मूला हम डिराइव किया है अभी, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V, ये हमारे लिए काम का है क्योंकि यहां पे न्यूमेरिकल्स हमें आते हैं इस पे. नाउ हियर साइन कन्वेंशन की अगर हम बात करते हैं तो आई टोल्ड यू W value, the value of W will be negative, means yes, expansion of gas, and in case of expansion of a gas, yes, V2 is greater than V1. yes, जब V2 होगा ज्यादा V1 से, in that case the value of delta V, V2 minus V1, this value will be positive, and that's why अगर ये वैल्यू पॉजिटिव मतलब पूरा W का जो वैल्यू क्या आएगा, ये आएगा निगेटिव. W का वैल्यू होता है पॉजिटिव जब होगा compression of gas. So in that case V2 is smaller than V1. Delta V, V2 minus V1. देखो V2 अगर छोटा है V1 से तो डेल्टा V का वैल्यू आएगा negative. So negative and this negative again. The value of W will be, yes, positive. So this is the thing you have to remember always. As I told you, देखिए यहां पर वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या आएगा. यस, फॉर दैट W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, यही आएगा. इसको चाहिए तो आप लिखो या फिर नाम को चलता है एक्सटर्नल को, तो यही आएगा क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ प्रोसेस in which system undergoes many changes and returns to its initial state. तो यहां पे ये आएगा. Then work done in case of work done in आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक के लिए क्या था देखते हैं हम लोग. सो आइसोकोरिक में यू नो दैट डेल्टा V का वैल्यू होता है 0, तो W का वैल्यू यहां पे जो हो जाएगा, the W, you know that put in the value of the delta V is equal to 0 in this equation, W हो जाएगा 0. So no work will be done in case of isochoric process. Similarly, work done in वैक्यूम. वैक्यूम के लिए क्या आएगा, क्या होता है वैक्यूम. Vacuum is the place where there is no external pressure. It is called as vacuum. तो यहां पे P का वैल्यू हो जाएगा बिल्कुल 0, तो W is also equal to 0. It's a work done
in case of a vacuum. Remember, work done in vacuum means work done against no pressure or zero external pressure is called as free expansion. This is also known as free expansion. See, when the gas is allowed to expand against zero external pressure, it is called as, yes, it is called as a free expansion. And in this case, work done will be equal to 0. One thing you have to note down clearly. जितना ज्यादा opposing force, I mean opposing pressure ज्यादा रहेगा, opposing force ज्यादा रहेगा, उतना ज्यादा होगा work done. Work done हमें तभी मिलेगा जब opposing force ज्यादा होगा. So to get the maximum work, this is the required condition. Opposing force should be always greater. Greater the value of opposing force, more and more will be work done. So to get the maximum work, it is important that opposing force should be much greater or as great as possible. So this thing also you have to remember. ये भी हमारे लिए काम का है. ये जो चीजें आप लोग नोट डाउन कर रहे हो, I hope that तो यही क्वेश्चन हमको आते हैं and these are all very very important concept. तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक ही रुकते हैं. कल जाके I mean in the next lecture you will see the next topic. Have a nice day. और पढ़ते रहिए. जो देता हूँ आपको मैं क्लास वर्क, उसको आपको सॉल्व करना है. Every day you have to do your study regular basis. All the best.